Yeah, hi all. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Let's start. So we have seen multiple transformation. We have developed that packages. So we'll see one some more today, and we'll wind up this session. And after that, we'll start BI. अगर कुछ बचता है बोलने लायक तो मैं और एक सेशन लेता हूँ. So the procedure I have told you, you have to explore from your side also. Just I have introduced, and just 20 to 30% I have told you how to develop. And theoretical point of perspective I have covered 100%. अगर जैसे रिक्वायरमेंट आता है उस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना है मॉडल, वो वहां पे बोल दिया जाएगा, वो मॉडल फेच करो. आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट. लेकिन इसमें हमको दिखाना ही आपका डेवलपमेंट का 6 months. एंड सम पीपल्स आर फेसिंग सम इशू व्हाइल गेटिंग द जॉब इन डेवलपमेंट, देन यू कैन शिफ्ट द गियर टू दिस साइड. टेस्टिंग में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट दैट इज वर्स्ट केस, बिकॉज दिस इज द वेरी गुड फील्ड यू हैव सेलेक्टेड एंड यू हैव अ गुड फ्यूचर अहेड ऑल्सो. थोड़ा इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन योर फ्यूचर विल बी वेरी सिक्योर्ड एंड वेरी लॉन्ग करियर. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. And package is not the bar for you guys. हेलो सर. Thank you, sir. इनिशियल लेवल पे टेस्टिंग को पैकेज मिलेगा अभी, लेकिन सस्टेन हो जाएगा अगर टेक्नोलॉजी वो डेवलप नहीं करेंगे. टेस्टिंग वालों लोग देखो, पहले मैनुअल जो टेस्टिंग है 12 साल से एक्सपीरियंस है, उनको पैकेज है 7 to 8 lakhs. लेकिन जिन्होंने ETL टेस्टिंग किया, BI टेस्टिंग किया, बिग डेटा टेस्टिंग किया, उनका पैकेज है 17 lakhs, 18 lakhs. द सेम एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग लाइक 3 years, 4 years. And from our class only people are joining like 15 lakhs, 14 lakhs, 13 lakhs. लेकिन जब एक 5 साल का इनको एक्सपीरियंस होगा, 6 साल का एक्सपीरियंस होगा, they are not allowing more than 30 lakhs of package. लेकिन for you guys it went to CR also. If you did well in your area, आपका पैकेज CR में भी जा सकता है. मीन्स मंथली यू कैन अर्न लाइक 7 to 8 lakhs in India. I'm not talking on shore, because in India only people are earning like 3 lakhs, 4 lakhs. Testing people are earning 2 lakhs per month. Okay, so for development, initial level was somewhat difficult, but when you are going ahead, it was a good career. And we are not in that zone like Java development, Python development. Python के साथ बहुत सारे added advantage है, जैसे data science है, machine learning है, ये आपको excel करना पड़ेगा. If you want to reach to that particular level, extent level पे जाना है CR में, जैसे IIT वाले लोगों को मिलता है, आपको 5 साल में वहां तक रीच होना है. 5 साल के बाद जब आप 2 या 3 साल के बाद जंप करोगे, अगर आपको अभी 12 मिला है तो तब डायरेक्टली इट हैज टू बी गो ऑन बियॉन्ड 36 lakhs और 38 lakhs लाइक दैट. उस तरीके का प्रिपरेशन, उस तरीके का लेवल. एक बार जॉब लग गया, वहां पे जाओगे, वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, यू नीड टू मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन वट एवर द थिंग्स यू आर गोइंग टू डेवलप और वट एवर द थिंग्स यू आर गोइंग टू लिसन. मीन्स वट एवर द KT दे आर गोइंग टू प्रोवाइड. जो भी पढ़ा रहा है वहां बंदा या ट्रेनिंग दे रहा है, उसको 100% एफिशिएंट होके सुनो. जितना सुनोगे अच्छे से, जितना समझ पाओगे, उतना अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर पाओगे. अगर एक बार सस्टेन हो गए, देन नो वन विल स्टॉप यू. ठीक है. यस सर. Yes, sir. Yes, चलो sir. गाइस, विल स्टार्ट. So these many packages we have developed. Sort, union all. This is the union all. Yes. Okay, here we have not done. This is your union all package. Now today we'll start with merge join. Merge join is nothing but merge join will help you. Merge join will help you to join whatever the joins we are having inside the SQL, like inner join, left join, right join, or full outer join. All the joins, it will allow you to do or perform multiple joins inside this concept. So this is the concept of merge join. तो merge join में होता क्या है, आप inner join कर सकते हो, outer join कर सकते हो, left join you can do, right join,
also you can perform. So using this transformation, join two tables. Join either by left, right, and full outer join. Now we'll see one by one. No issue with that. We'll develop a simple transformation here. So we'll select the two tables and we'll do that. I'm selecting from this database. Normal लेते हैं so that we can easily understand the concept. This is the table A and this is the preview. This is the data we are having. And here I am selecting the table B. Okay. Now I'm applying that merge join. Here, based upon which table you are going to perform joins based upon my left. Okay. Now in this merge, so what it will suggest, this is sorted property must be set to true on both sources of this transformation. So before applying this merge join, we need to sort. You can't merge that. So the same thing. सिमिलर टू सर यूनियन ना. हाँ, यूनियन के लिए वैसे ही करते हैं ना अपन, सॉर्ट. यूनियन को सॉर्ट करना है नहीं करना, इट्स योर चॉइस. ओके. यूनियन को डायरेक्टली इट विल अलो, बट हियर इट इज मैंडेटरी. इस बेसिस पे सॉर्ट करना है. आई एम सॉर्टिंग दिस ऑन AID हियर आल्सो. So based upon the left output, sorry, left input, I am sorting. Automatically will be considered as the right. Which is my
ओके तो कौन से कॉलम दिखाने हैं वो देखना है हमको. आई एम सेलेक्टिंग ऑल दिस कॉलम्स. आफ्टर दैट दिस वन, these are BIDs. This is the P table column names or right table जो भी है. I'm changing it to so that we can easily identify. The ID column is from P table. So click on OK. It has been configured. Now select that OLD in which on where. So I'm creating the table. So these are the mappings. Click on OK. So this table has been created. Now we'll run this batch. And which join we have applied, that is important. See here we have applied inner join. इनर ज्वाइन यहाँ पे रहेगा आपका इनर लेफ्ट एंड फुल. राइट ज्वाइन नहीं है. राइट ज्वाइन कैसे रहता है आई विल टेल यू. सो दिस वाज द केस. So these are the rows and we'll select that. First. Star from which table we have selected. So these are the tables A and B and join. Only the matching records are popping, right? Sure. Destination. Here we are having the swap inputs. I will tell you why it is. का नाम क्या दिया था? ज्वाइन लेफ्ट, राइट?
लेफ्ट टेबल का डेटा पूरा कंप्लीट डिस्प्ले हो रहा है एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट इट इज डिस्प्लेइंग एंड व्हाटएवर द रिकॉर्ड्स आर नॉट मैचिंग देयर वी आर फाइंडिंग दैट null values. Yes, sir. Agree? Yes. Yes, sir. Now अब हमारे पास we'll do one thing, we'll swap that right join करने के लिए because we don't have any option here, inner join, left outer join and full join. So if you want to do that right join you can do that, but in other words also we can perform. Click on OK, just change the destination again. Join right. Is your join right? Now check. ये राइट का कैसे किया सर? Swap किया राइट से उसने. रिपीट करो. Just we have swapped the inputs. हो गया? Yes, sir. In output, yes. In output, हाँ, and sir. we'll another one we'll do. Fine. Full. We can do. Go to that merge in not required. मैं swap कर दिया फिर से. Full outer join. यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको स्वैप का, सिर्फ whenever you are going to apply the left option is enabled. Swap inputs are not, and when we are swap is enabled. I'm applying a full join. Okay. This is also done. You can observe here only how many rows has been copied. 5 rows are coming from this side, 5 rows are coming from this side. Out of that, 3 rows are common and remaining 2 rows are distinct, either of the table. So those 7 rows has been copied inside in this OLDB destination. The destination was your full join. So if you look at the output, this is left join, second one is right join, and third one is full join. Clear है? Yes, sir. सर इसमें क्रॉस जॉइन कर सकते क्या वो? क्रॉस जॉइन, इक्वी जॉइन? नहीं, क्रॉस जॉइन simply that is not an join term actually. क्रॉस जॉइन अलग हो गया थोड़ा, यहाँ पे implemented नहीं है. Okay. That is you can use by using that in SQL only. यहाँ पे आपको ना self join मिलेगा ना क्रॉस जॉइन मिलेगा. Those are we can call it as, consider it as equi joins. ठीक है? Yes, sir. So
Next is derived transformation. I will tell you. So we'll select this Excel source. New one. Browse. We have one derived table. Means I have given the name. This is the data only. Don't get bothered about the name. So this is the data we have taken. And this target data we need. This is full name, this is gender, and this is hometown, and this is salary. And source data is this one. Okay. This here also. Sir. So what we will do? So these are the columns. What it is taking this one. Delete करना पड़ेगा उसमें. Okay. One second. No, ये source data नहीं है.
Okay, we will select that one. सेव कहाँ किया हमने? So these are the columns. Derived columns is nothing but converting. If you want to apply some sort of a functions on that particular columns, then you can go for the derived transformation. And real time, this is very useful, and you are using multiple times, because here all the functions means configured functions you will find inside this. So what is the requirement? So we have is dummy data. So what I need to show in the output ID as it is. This column will be name. This is gender and salary. This is hometown, but it should be in uppercase. Uppercase. और यहाँ पे मुझे gender कैसा चाहिए? I don't want this complete female and male. Just I want only single word, male or male. Okay, these are the conversations I want to apply, and this is I will name it as a full name, and this will be hometown, and this will be salary. These are the conversation I am looking for to apply here. So here the same thing. So I want to take his first name. Now I can concat. I can add. There are three methods to concat the two columns. How will concat? Columns करो या word करो कुछ भी. What are those three different ways? You have studied in SQL. Concat function by using plus operator. Yes, concat option use करने का जरूरत ही नहीं है आपको. Plus अगर operate use कर रहे हो, then in that case you can easily go for the concat. Otherwise you can use concat also. So I will use simple instead of using this. So this is the first name and last name. So I will name name. So next I will take this gender. अब मुझे एक ही वर्ड चाहिए तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? Take. क्या करना पड़ेगा मुझे? कौन सा फंक्शन यूज करना? Gender equals to m, sir. That is conditional split.
यहाँ पे मेरे पास फीमेल है, मुझे एफ चाहिए. आई वॉन्ट टू गेट दिस. ये जो फीमेल है, whenever it is female it has to populate f, and whenever it is male it has to give me m. How I can do that? If First letter is condition female is equal to m and male is equal to m and f ऐसे रिप्लेस करेंगे सर. Any other way? Easiest फर्स्ट way. कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे. फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे. कैसे करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर? सीक्वल क्वेरी से अपना सबस्ट्रिंग लेके सर. कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग लेंगे. Getting my point? Just what we will do, Yes, sir. whatever the gender is there, ओके सर. we'll replace this character expression with gender. After that इसका स्टार्ट लेन देंगे, वो क्या है 1. इसका एंड कहाँ पे करना है हमको, that is also 1. क्लियर? उतना रिप्लेस के इसमें नहीं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल फंक्शन है. then why, who will write the condition? Why we want to waste the time? Right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In another way, in the conditional expression way, you can write, I will write that also. ऐसे लिख सकते हो आप. Just fetch this one. So equals to, इनके लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वो लोग ऐसे लिख सकते हैं. मेल, देन अगर मेल है तो in simple way can write m, otherwise colon, yeah, we'll take this column as well, under 1. After that और एक क्या था हमारा requirement, we want to convert this hometown and we want to make it upper function. upper function we have used, and we have take that hometown. Okay. Okay guys, clear or not? Yes, sir. So this will be the सर थोड़ा base. ट्रांसफॉर्मेशन धीरे करो ना, वो लैग हो रहा है बहुत. सबको लैग हो रहा है? हो सर. हाँ, थोड़ा स्लो कीजिए सर. हाँ, अभी ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ सर. So you can change the data type also here, whatever the data type. अगर आपको लग रहा है you want to change the data type, then you can see it is by default आ गया. ये 511 लेंथ हो गया, दोनों को ऐड किया ना हमने. तो फर्स्ट नेम का लेंथ कितना था 255 और ये प्लस जो हमने ऐड किया स्पेस उसका एक लिया ये, दैट इज व्हाट 511. एंड होम टाउन का 255 एनवीआरकेआर था, क्योंकि एक्सेल से सोर्स आ रहा है तो एनवीआरकेआर का साइज 255 है, दैट इज डायरेक्टली इट इज टेकिंग. और ये जेंडर हमने रिड्यूस किया तो इसका साइज यहाँ पे आ गया. दिस इज द डेटा टाइप. yes sir. ठीक है.
ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, उसका साइज वगैरह जो आप डिराइव कर रहे हो उसका साइज वो यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, अब दिख रहा है, मैंने ओके कर दिया। यस यस सर, थोड़ा लैग हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप करते हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये इतना खत्म करके खत्म कर देता हूँ, कर लेंगे वो। ये देखो मैंने OLDB डेस्टिनेशन लिया, कल का इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा, पिवट अनपिवट पढ़ने का है हमको, और रियल टाइम में भी यूज होगा आपको, क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे, पिवट अनपिवट मर्ज, ये वाले खत्म कर देंगे कल। ठीक है, तो डिराइव्ड अरे कॉलम में स्क्रीन हमने, अटक रही है। अब कहाँ पे है स्क्रीन मेरा, बोलो। ODBC डेस्टिनेशन। हाँ, ODBC डेस्टिनेशन, राइट, ODBC लिया क्या मैंने, OLDB डेस्टिनेशन लेना है मुझे। तो मैं कुछ नहीं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैंने डिराइव कर दिए कॉलम्स, जस्ट आई एम कनेक्टिंग फ्रॉम दिस डिराइव्ड कॉलम टू माय डेस्टिनेशन, आई एम प्रिपेयरिंग द डेस्टिनेशन। एक दिख रहा है अभी? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो इसको मैंने क्या करना है, OLDB डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ आपके डेटाबेस में, आपका डेटाबेस है P21 22 23। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग द टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, आपको इसमें से कौन से कॉलम चाहिए कौन से नहीं चाहिए, यू कैन रिमूव दैट, और आपके डेस्टिनेशन में आपको जैसे स्टोर करना है यू कैन डू दैट। तो मुझे आईडी चाहिए, राइट, यस आई वांट दिस आईडी, यस। आई डोंट वांट दिस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। होम टाउन। सी दिस इज द एक्सेल सोर्स, जेंडर को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ये कॉलम चाहिए मुझे, उसका नाम मैं रख रहा हूँ जेंडर। तो सैलरी चाहिए मुझे, होम टाउन नहीं चाहिए मुझे, या आप रख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पूरे कॉलम्स रखते हैं, कन्वर्ट हुआ है कि नहीं देखते हैं। पूरे कॉलम्स रख रहा हूं मैं, लेकिन कन्वर्टेड वाले कॉलम्स में नीचे लेता हूँ। ये एक्सेल सोर्स का कॉलम है, ये नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे जेंडर और जेंडर 1 जेंडर 2 है। सर अपने हिसाब से अपन मैनेज कर सकते हैं उसके, उसको जैसे ऊपर नीचे कहाँ पे होना है उस हिसाब से। हाँ हाँ, वो जैसे रिक्वायरमेंट आप उसके हिसाब से ये कर दो। यहाँ पे एक जेंडर है डिराइव्ड वाला, और यहाँ पे एक जेंडर है, gender 1 and gender, these are the two derived, and this is the source coming from Excel. So what we'll do, we'll keep it as it is, और ये 4 कॉलम डिराइव्ड है, हम कंपेयर करते हैं डिराइव्ड हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैपिंग भी वैसे ही रहेगा, क्लिक, और दिस इज hometown 1, derived test, let's start from अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है टेबल, तो क्लिक ऑन ओके, जस्ट चेक द मैपिंग्स। होम टाउन का मैपिंग नहीं हुआ है अभी, दिस इज द होम टाउन, और बाकी का मैपिंग सही है, सो क्लिक ऑन ओके, नाउ चेक। So these many columns are created. We'll check after loading the data.
So these all the 27 rows has been copied inside in that particular table. We'll check. See, ये आंसर सेम ही आना चाहिए, आ गया. And this is converted, and this is Natalie Spooner. Natalie is here, Spooner is here, and this is female. It has converted into female. ये नॉर्मल सबस्ट्रिंग वाला कॉलम है, और ये हमारा फॉर्मूला वाला जो हमने वहां पे फॉर्मूला लिखा था, ये वाला जेंडर इक्वल्स टू मेल मार्क दिया था वो. और उसके बाद में अगर मेल है तो यम लिखो. सर सिंपली सर अपन ने डिराइव में ऐसे किया ना, जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार कंडीशन यूज किया. किसमें कंडीशनल स्टेट में? मैंने डिराइव अभी किया ना आपने ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव का. हाँ, इसमें सिर्फ अपन के मतलब जैसा चाहिए वैसा कंडीशन अनुसार वैसे ही किया ना. हाँ, रिक्वायरमेंट एज ए रिक्वायरमेंट. मेरा ये रिक्वायरमेंट था, उसके हिसाब से मैंने कर दिया है. क्या कोई अलग पर्पस है इसका? नहीं 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 नहीं, देखो रिक्वायर कैसे, सोर्स में बहुत सारा डेटा है, लेकिन आपको अननेसेसरली ऑपरेट करना नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो. जैसे नाम हो या कोई सैलरीज है या एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट आपको एक ही जगह पे मर्ज करना है. मतलब सर तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेना है ना? हाँ, जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उतना ही करना है, जितना नहीं है. ये देखो, आपको सारी चीज आपको मैपिंग शीट के हिसाब से करनी है. जितना मैपिंग शीट में रिक्वायर्ड है वो चीजें आप कर सकते हो, और जितने कॉलम्स आपको कन्वर्ट करने हैं उतने कॉलम सेलेक्ट करो. दैट्स इट. अगर मेरा आउटपुट में अगर उन्होंने बोला है कि मेरा कन्वर्ट होने के बाद मेरा ये आना चाहिए, आई हैव नॉट सेलेक्टेड आईडी, राइट? आईडी है ना, फुल नेम चाहिए और आईडी चाहिए, एंड जेंडर कॉलम एंड होम टाउन ओनली आई रिक्वायर्ड इन माय टारगेट टेबल, rather than this. In this format I want that. फिर अपन फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिमूव भी कर सकते हैं. Yes, you can remove this, no problem. ठीक है. यस सर. और एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन बोलता हूँ, we have time. Pivot and pivot नेक्स्ट क्लास में लेके BI स्टार्ट कर देते हैं. So I will tell you that एग्रीगेट ट्रांसफॉर्मेशन बोल के है. अगर आपको एग्रीगेट करना है और एक्सेल मल्टीपल फाइल्स में कुछ जनरेट करना है, समझो ऐसे कहाँ पे गया ये? Okay, so what we can do is, हमने टेबल बनाया था again. इसमें नहीं है, इनिशियल वैल्यू रहता है. Okay. What we'll do, we'll take this sheet and we'll calculate the minimum wait period. We'll calculate the maximum labor rate. We'll calculate the maximum labor cost and labor fees also, and parts fee. And we'll do this total cost and total fee. We'll sum this one. So we'll select this and we'll generate the report in flat file. ठीक है guys? स्क्रीन दिख रहा है मुझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ सर विजिबल है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्रीगेट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा. एग्रीगेट में मैं मिनिमम मैक्सिमम जैसे एग्रीगेट फंक्शंस है हमारे, वो वैल्यू मैं यहाँ पे अप्लाई करके मैं एक मेरा रिपोर्ट बना सकता हूँ मेरे पास. then I can go for that and I can prepare it.
So this is the Excel source. I will select that source. कौन सा है हमारा वो? क्या बना? And this one, order and work orders. So we go for that. Browse it. So here, what it will do, आपको कौन से कॉलम को अप्लाई करना है, that column you have to select. So I am selecting this labor cost, labor fee, parts fee, total cost, total fee, and what is the minimum wait period, and that is the labor rate. So okay, oh sorry, sum कर रहा हूँ मैं सबका, sum नहीं चाहिए. तो labor cost में मुझे क्या चाहिए? What is the minimum labor cost? Labor fee में क्या चाहिए? See all these functions, group by, count, count distinct, sum, average, maximum, all these functions you can use. तो labor fee में मुझे क्या चाहिए? Average fee. And parts fee में मुझे चाहिए maximum. And total cost, I want to keep it as a sum. Total fee also. After that minimum wait period I want to get. And labor rate, average labor rate I want to calculate. Okay. Okay. So we'll take this in destination. अगर एक report generate करना है मुझे, मैं Excel में भी कर सकता हूँ. It's my choice. I can take it in any form. So I will select this flat file easily. सर वो सोर्स है. Oh sorry. लेकिन फ्लैट फाइल कॉन्फ़िगर तो कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा वहां पे. So delimited चाहिए, fixed width चाहिए, fixed width road delimiters और rag limit. So we'll select this delimited. And आपको delimiter क्या चाहिए वो you have to decide यहाँ पे. So we'll browse that first. तो मेरा कहाँ पे गया? Desktop पे. This is the thing I have created. This was open. And these are the columns I have selected. Labor cost and all. तो यहाँ पे मुझे कॉमा चाहिए या मुझे वर्टिकल बार चाहिए, that needs to decide by myself. So in order to get that tab, मुझे space चाहिए, so I will do that. So you can get the preview. So in this it will load.
Mapping we just check. Mapping has been done properly. You can run. You can open that. See, this one is empty. Okay, I'm closing this one. I run this package. So one row has been copied inside in that flat file. You can go and check that on desktop. बट यहाँ पे नाम नहीं आया, ठीक है, तो विल टेक दैट नेम्स आल्सो. यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है वो. Okay. So we have taken that comma, labor cost वगैरह, ठीक है. So in this way or in this format, you can aggregate the data and you can make it use of your reporting perspective. Depends upon your choice. ठीक है, guys. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So tomorrow will be the last class for your ETL. I will take that pivot and unpivot operators and some of the things which is I need to discuss. I will let you know. ये क्या 2 क्लास में खत्म कर देता है, ठीक है. सर शीट शेअर करा ना. Okay, sir. कौन सा वाला? एक्सेल शीट जो डेटा सोर्स लिया ना अपन. ठीक है, मैं शेयर करता हूँ, डोंट वरी. सर, हाँ बोलो. एक्सेल शीट मधल्या एक असेल एक्सेल फाईल, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ शीट्स असतील आणि नंबर ऑफ शीट्स वेगवेगळ्या ह्याच्या टेबलमध्ये जर स्टोअर करायचे असतील तर कसं करायचं? वेगवेगळे सोर्स घ्यायचे आणि त्याच्यात कॉन्फिगर करून घ्यायचे. आणि डेस्टिनेशन पण करू शकता. मल्टिपल डेस्टिनेशन, मल्टिपल सोर्स. ओके.
नाही कॉन्फिगर करावं लागेल प्रत्येक वेळेस, प्रत्येक शीट कॉन्फिगर करावं लागेल त्याच्यामध्ये. ओके सर. ठीक है. कौन सा भेजना था मुझे? ऑर्डर्स वाला एक. ठीक है. और परवादीच्या लेक्चरचं पण राहिलेत सर करायचे. आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यही लेके प्रैक्टिस करना है. हेलो सर. हम्म. सर हम यहाँ पर डेटा वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं ना डेटा हमारा, तो वेयर हाउस से फिर एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं? सेम प्रोसेस क्या? वेयर हाउस से सेम प्रोसेस. आपको टैब्ल्यू लगाना पड़ेगा या आपको कोई टूल लगाना पड़ेगा फॉर रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव, एंड इट हैज टू इंटीग्रेट विद द योर डेटाबेस. सॉरी, डेटा वेयर हाउस और डेटाबेस. यानी कि डायरेक्टली टैबल्यू से कनेक्ट करते हैं या यहाँ से एक्सेल शीट या देखो, SQL एक्सेल सीट से फॉर्मेट? भी निकाल सकते हो. जैसे मान लो आपको वो रिपोर्टिंग परमानेंट रखना है एंड यू नीड नॉट टू रन द बैचेस, और आपको एक स्टोरेज है, तो आपको ये क्लियर करते रहना पड़ेगा. जैसे मैं कर रहा हूँ, हर एक टाइम बैच रन कर रहा हूँ तो वो मुझे फाइल क्लियर करनी पड़ रही है. वैसे नहीं, उसको अपडेटेड टास्क चाहिए, जो भी अपडेट होगा उसी लिए रिपोर्टिंग टूल यूज करते हैं. क्योंकि अगर मैं एक्सेल में कुछ अपडेट करूंगा, अगर लाइव पे रिपोर्ट जनरेट करना है तो इट विल वोंट टेक. जो डेटा पहले टेबल में स्टोर हुआ था उसी के ऊपर वो रिपोर्ट जनरेट करते रहेगा. लेकिन टूल में, ETL टूल में अपडेट नहीं होगा डाटा आपके. अगर एक्सेल सीट में हुआ है अपडेट, तो एक स्टैटिक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. whatever the report I have generated, मैं एग्रीगेट का जो रिपोर्ट जनरेट किया था, दैट इज स्टैटिक. बट इन रियल टाइम वी वांट डायनामिक रिपोर्ट. अगर सोर्स में कोई चेंजेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, या आपके वेयरहाउस में कुछ चेंजेस हुआ, वेयरहाउस में कुछ डेटा आके लोड हुआ है एंड यू वांट टू जनरेट दैट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली. एक बार अगर आपने रिपोर्ट जनरेट करके रखा है और वेयरहाउस में कंटिन्यूसली डेटा स्टोर होते भी गया, तो उसी बेसिस के ऊपर अपडेटेड डेटा के साथ ही रिपोर्ट जनरेट करेगा. हाँ सर, वो शेड्यूल वगैरह करना पड़ता है, वो वैसा है ना? यस. शेड्यूल नहीं, मैं आपको बताता हूँ. शेड्यूल तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गया, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया. लेकिन होता कैसे है, लाइव और दो एक्सट्रैक्ट बोल के डेटा रहता है, कैसे अपडेट होता है, और अगर यूजर ने वहां पे अपडेट किया तो इमीडिएटली यहाँ पे भी हो जाएगा. ओके. ओके गाइस, सो चलो. ओके सर, बाय. या देयर आर मल्टीपल ETL टूल्स आर अवेलेबल इनटू द मार्केट. लाइक ये देखो, इन्फॉर्मेटिका है, डेटा स्टेज है, अपेचे नाइफाई है, अमेजन का रेडशिफ्ट है, और बहुत और कुछ नाम, हाँ, एटकामा है, एंड अनदर वन, एक बहुत, कौन सा है वो, मल्टी स्ट्रेटजी कुछ तो है उसका नाम, आई हैव फॉरगेट दैट. अबनिशियो है. ओके, मेनी सब में टूल्स. सेम रहता है सर? यस यस, कॉन्सेप्ट्स आर सेम. लेकिन आपका डेवलपमेंट करने के लिए उस टूल में जाना पड़ेगा आपको, वो टूल सीखना पड़ेगा पर्टिकुलर. पर सिंटैक्स चेंज होता होगा ना? क्या क्या? सिंटैक्स वगैरह चेंज नहीं, वहां पे भी कॉन्फ़िगर्ड मॉडल मिलेगा, लेकिन उसका डेवलपमेंट करने का तरीका अलग रहेगा, उसका विजुअलाइजेशन अलग रहेगा. प्रोसेस सेम रहेगा. आपको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट वाला ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने किस तरीके से डिजाइन किया, उसको ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, या उसको खींचना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. ओके सर. That depends upon not only you, that depends upon the tool I am talking. Okay, chalo, no problem. Happy Sunday. Enjoy your यू weekend. टू सर, थैंक यू. थैंक यू सर. Tomorrow at Thank the you, sir. same time, like 7:30, whatever the time we are having. Yes. Okay, chalo guys, bye, take care.